the names of all the ions. तो वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसी बोर्ड के ऊपर। जो लोग अभी ज्वाइन किया ना, आई सेंड द लिंक, उसके अंदर ये सारे आयंस के, और मैंने एक वो शीट भी सेंड की हुई है, तो आई सेंड दैट अगेन, जिसके ऊपर ये सारे आयंस के नाम वगैरह, उनके फॉर्मूलाज, क्रिस क्रॉस वगैरह हमने किया था, ठीक है। सो वी कंटिन्यू विद द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मेटल प्लस एसिड, ये सारी इक्वेशंस तकरीबन दे ऑल ऑलमोस्ट सिमिलर। तो वी गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, कि एक तो उसमें ना मेटल प्लस एसिड के अंदर रिमेंबर कि not all metals are going to react with acids to produce salt and hydrogen, ठीक है। only reactive metals, क्योंकि metals की reactivity के अंदर ना there's a huge difference. So there's a huge difference in the reactivity of metals. कुछ metals जो होते हैं वो बहुत unreactive होते हैं, जैसा gold वगैरह, ठीक है। There's some other metals that are kind of very reactive, जैसा group 1 के metals हैं, ठीक है। They're extremely reactive and they react explosively. So things are going to vary. तो इसका ख्याल रखना है, और उसमें ये कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है उसकी ओ लेवल्स में, तो उसमें पता होना चाहिए कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह दे वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, so we're going to start making equations. First equation, let's say magnesium plus hydrochloric acid, which is HCl. तो salt अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, what is salt. तो प्रोड्यूस क्या होगा, salt is going to be produced and hydrogen gas, H2 gas is going to be given off, ठीक है। that's the overall reaction. Salt मैंने अभी तक mention नहीं किया कि what salt is going to be produced. Most of you already know कि what salt would be produced. As a salt is a neutral compound that is produced when an acid is neutralized. How is an acid neutralized? कि acid में से अगर H खत्म कर दो ना, तो it's no longer an acid, क्योंकि acid का काम होता था, acid की definition ये थी कि it produces H plus one ions. So if it's not capable of producing H plus one ions, it won't be an acid. तो Mg यही काम करता है, metal आता है, it knocks out the hydrogen and takes its position. तो Mg2 plus हो जाता है 7 और Cl minus 1, ठीक है। तो Mg आता है और H की जगह ले लेता है, और H knockout होकर ना it forms H2. So it's always going to be H2 because it is diatomic. और Mg2 plus उसकी जगह ले लेता है, और क्रिस क्रॉस करो तो फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2, ठीक है। That's the salt that's going to be produced. तो salt का हम लिख लेते हैं कि a salt is a neutral ionic compound and it is produced when an acid is neutralized. So how is it neutralized? Replace or get rid of the H plus one ions with any other positive ion. Usually it's a metal ion, but it could be any positive ion. Just ammonium is a positive ion. So replace H plus one in acid with any other positive ion. So it would, if there is no H plus one ion, it's going to lose its ability to produce H plus one ions with any other positive ion. Usually metal. So that's how your salt is going to be produced. So simple. और हर reaction के अंदर इसी तरह होगा. Let's pick another reaction. So this equation is not balanced. Remember to balance equations when you make them. ठीक है, तो Cl 2 है यहाँ पे, तो you need to multiply this by 2, और बाकी equation looks balanced. Let's pick another reaction. I have aluminium reacting with nitric acid, which is HNO3. तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगी प्लस H2 गैस। तो H2 गैस तो पहले ही बना दो। सॉल्ट किस तरह बनेगी, द H would get knocked out, aluminium is going to take its place. तो aluminium, H is knocked out, तो aluminium H की जगह आ गया। Charges पहले, aluminium is in group 3, so it's +3, NO3 is -1, so it's going to be, criss cross करोगे तो NO3 thrice हो जाएगा, ठीक है। That is the salt that would be produced.
हमेशा ये करना कोशिश कि आप ये जो सॉल्ट है ना इसका फॉर्मूला आप बना लो। अच्छा, देन यू हैव कि इसको बैलेंस करना है, सो यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। चार्जेस हटा दो, एरोज हटा दो। NO3 थ्राइस है, so there would be 3 hydrogens, 3 HNO3 molecules. लेकिन तब इशू आ जाएगा कि यहाँ पे 3H है, वहाँ पे 2H है, तो how would you balance 3H and 2H? तो कॉमन उसको मल्टीपल होना चाहिए, तो you can make them 6. इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो H इक्वल हो गए, NO3 6 हो गए। तो दिस शुड बी, इमेजिनरी ब्रैकेट लगा के आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो 6 NO3s हो गए, aluminiums 2 हो गए, so I'm going to write 2 over here. So that's how we're going to make this equation. Let's do one more, calcium. So calcium plus phosphoric acid. So calcium plus phosphoric acid, same thing. Calcium goes, H knockout kar diya, it forms H2. Calcium takes its position, so it's Ca and PO4. Charges dekh lo, calcium is 2 plus, PO4 is minus 3, so it's going to be Ca3, PO4 twice. That's your equation for this reaction. तो एक काम करो, I'm giving you, hopefully सारों को clear है, और ये करते भी आ रहे हो, तो just as quickly as possible, ठीक है, send me these two equations. It's sodium plus phosphoric acid. Plus another one which is magnesium plus sulfuric acid. ये जल्दी से सारे ना मुझे send it on WhatsApp, और मेरा नंबर तो वहाँ होगा, बस उसके ऊपर ये WhatsApp कर दो, और do it as quickly as possible, ठीक है? You have 5 minutes for this. Now Na plus H3PO4, तो क्या होना है कि Na is going to come and it's going to knock out, और Na उसकी जगह आ जाएगा. Just make sure कि formulas ठीक हो, कि you have to make this formula again. ये नहीं होगा कि बस Na को उधर जाके रख दो. What you have to do is कि Na is in group 1, so it's +1, PO4 is -3, so the formula is going to be Na3PO4. Now most of you got that right. ये वाली चीज हिबा, just remember कि it's always hydrogen gas, and hydrogen gas has a formula of H2. ठीक है, उसको भूल जाओ कि वहां से ना 3 हाइड्रोजन आपने रिमूव किए, इग्नोर दैट। पहला काम है आपने फॉर्मूलाज ठीक करने हैं। हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज H2। वो जो बैलेंसिंग वाला काम है ना, वो फिर आप एंड में करते हो कि जी वहां पे तो 3H थे, यहाँ पे 2H है। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, तो इसको H2 ही रखना है, जो मर्जी है वहां पे, अगर 6 हाइड्रोजन भी है ना, यू हैव टू कीप दिस H2। उसके बाद एंड में ना, वंस द फॉर्मुलाज आर करेक्ट, यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो Na3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो। अच्छा, मसला यहाँ पे आ रहा था कि लॉट ऑफ पीपल डिडंट गेट दिस बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 3 है एंड देयर 2 ओवर हियर। तो आप दोनों को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो इक्वल हो जाए? तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड योर हाइड्रोजन्स आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड। खदीजा, इज दिस क्लियर? हमारी आपने भी बैलेंस नहीं किया हुआ था, क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, सो अभी खैर एच बैलेंस हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि PO4 भी ट्वाइस हो जाता है। तो यहाँ पे तो एक ही PO4 पड़ा हुआ है इस जगह, तो वहां पे 2 पड़े हुए हैं, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस एंटायर मॉलिक्यूल बाय 2, क्योंकि इधर PO4 ट्वाइस है, तो इधर भी PO4 ट्वाइस होना चाहिए। अब वो अगर मैं करूँ तो सोडियम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो जो पहला काम था ना 3 सोडियम्स, दैट्स रॉन्ग, इट्स गोइंग टू बी 6 सोडियम्स। ठीक है, नाउ द इक्वेशन इज
balanced. Second equation तो मेरे ख्याल से start से ही balanced थी, तो no one really had a problem with the second equation. ये clear है सारों को? Yes, sir. अच्छा, then moving to the second equation, which is pretty much the same. As a second equation is base plus acid, and it produces salt plus H2O. So that's your second reaction. Achha, but not any base. And when we talk about base in this case, it's going to be metal oxide या फिर metal hydroxide. ठीक है, और it could be ammonium hydroxide as well. बेस का क्या काम होता था? बेस का मेन रोल होता था, it used to accept H plus ions. और एसिड का काम होता था, it would produce proton donor होता था, it was producing H plus ions. ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिस क्यों थे, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया था कि कब एक्सप्लेन किया था समय, ये फॉर्मूला ऑफ एसिड्स था. हाँ, ये बेसिस के अंदर मैंने बताया था कि ये O2 माइनस आयंस क्यों बेसिस है, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट H+1 एंड दे कैन फॉर्म H2O. OH minus 1 क्यों बेसिस है, क्योंकि दे कैन आल्सो एक्सेप्ट H+1 एंड दे कैन फॉर्म H2O. कार्बोनेट इधर हम डिस्कस नहीं कर रहे. कार्बोनेट्स आर आल्सो बेसिस, उनकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. कार्बोनेट्स कैन आल्सो एक्सेप्ट H+1 आयंस एंड दे कैन उस कार्बोनेट में जो एक ऑक्सीजन होता है ना, वो H+1 एक्सेप्ट करके वाटर बना देता है, and what is left is carbon dioxide. So all of them are capable of accepting H+1 ions. So ये जो equation है ना, base plus acid and salt and water, that does not include carbonate. यानी ये so ये carbonates की equation नहीं है. अच्छा, so any equation, let's pick an equation, magnesium hydroxide. And I'm going to react it with phosphoric acid कर लेते हैं. So magnesium hydroxide reacting with phosphoric acid. पहले तो फॉर्मूला magnesium hydroxide, Mg is 2 plus, group 2 में hydroxide is OH1 minus, OH minus 1 minus hydroxide का तो याद रखना है. तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला would be crisscross MgOH twice. What is phosphoric acid? It's H3PO4. तो क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए salt and water. तो वाटर आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है. वाटर को तो वैसे ही आंखें बंद करके वाटर बनेगा. सो राइट डाउन वाटर. हाउ वुड यू फॉर्म द सॉल्ट? सॉल्ट वही होगा, मेटल का आयन आएगा और उसी तरह H को नॉकआउट कर देगा, H की जगह पे आ जाएगा. तो इट्स गोइंग टू बी Mg आ जाएगा PO4 के साथ, मतलब वो H जो थे ना, दे वुड गेट न्यूट्रलाइज्ड, दे गोइंग टू गेट नॉक्ड आउट and उसकी जगह Mg आ जाएगा. Just make sure कि इसका फॉर्मूला बना लो. Mg is 2 plus, PO4 is minus 3. So if you do crisscross, it's going to be Mg2 and PO4. गलत कर दिए. Mg3 and PO4 twice. ये इसका फॉर्मूला होगा सॉल्ट का. So it's exactly the same. वही हो रहा है कि मेटल आ रहा है and it's neutralizing the acid. So that is going to result in the formation of your, अच्छा ये चार्जेस वगैरह हटा देते हैं. And this is our equation. ठीक है, तो just one second थोड़ा सा. Sir, in exams, do they ask us to put the state symbols as well in these type of reactions? हाँ, मतलब वो अभी तो हम इस आगे बिल्ड करेंगे ना. अभी तो स्टेट सिंबल्स पे हम आए ही नहीं है, क्योंकि सॉलिबिलिटी टेबल अभी we haven't revised the solubility table. ठीक है. Okay. लेकिन not only state symbols, you need to know the ionic equations किस तरह बनती हैं. ठीक है. Okay, sir. तो उसके अंदर वो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स वगैरह थोड़ा सा, तो मतलब ऑब्वियसली ये वो O लेवल्स का ना ये मेजर चंक है जो आपको रिवाइज करना है. ठीक है. Okay. अच्छा, so this one you have magnesium hydroxide reacting with phosphoric acid to produce, so you have this reaction.
and it's complete now. The only thing is you need to balance this equation. अच्छा, balancing का rule याद रख लो कि मतलब पहले तो वही एक मैं वैसे इमेजिनरी ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, सारों को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, so that the quantity of reactants and products and the atoms of different elements, they are equal on both sides. ठीक है? एक simple सा rule है which helps balancing. Start with the easiest. Whenever you're trying to balance, start with the easiest. और फिर आहिस्ते आहिस्ते ना move on to the more difficult ones. Easiest कौन सा है? वो element that appears in least number of places and least number of times as well. अच्छा, and then move to the more difficult ones. तो कभी भी ना balancing, although I think you all would be pretty good with balancing, लेकिन just make sure you remember this rule. Start with the easiest, जो least number of places में आ रहा है, ठीक है? For example, if you look at this equation, तो इसमें देखो कि oxygen कितनी जगहों पे आ रहा है? Oxygen is over here. अच्छा, so look at oxygen. Oxygen is over here. Oxygen is over here. Oxygen is here as well, and oxygen is over here as well. So oxygen को हम कर देते हैं कि जी oxygen से start ना करो. Oxygen is in 4 places. ठीक है? So don't try to balance oxygen, at least in the beginning. You have to start with the easiest. अच्छा, फिर बाकी देखो, hydrogen को देखो. कितनी positions पे hydrogen है? Hydrogen is in this one, hydrogen is in this molecule as well, and hydrogen is over here as well. So it's in 3 places. तो अब easiest पे आ जाओ. Which one is the easiest? Look at magnesium. Magnesium is in 2 places. ठीक है? तो that is probably the easiest. कि magnesium एक जगह यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे है. So I'm going to pick magnesium and I'm going to start with magnesium. I'm going to try and balance magnesium first. Easiest वाले को. तो किस तरह करना है? आप कर लो बस ये 3 magnesium यहाँ पे है, तो इस molecule को 3 से multiply कर लो. That's it. ठीक है? So magnesium is balanced. ठीक है? Easiest है. अच्छा, which one is the easiest now? We are done with magnesium. The easiest जो है ना, that's phosphorus. Look at phosphorus. Phosphorus is also in 2 places. So let's try and balance phosphorus now. कितने phosphoruses हैं यहाँ पे? ये PO4 के अंदर तो एक ही है, bracket 2 है, तो इसका मतलब है there are 2 phosphoruses. ठीक है? मतलब P एक ही था, there's no number next to P. लेकिन वो ब्रैकेट डाल के 2 किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि they are 2 phosphoruses. तो दूसरी साइड पे भी 2 होने चाहिए. तो if you look at the other side, there's only 1 phosphorus. तो आप क्या करोगे? आप इसको multiply by 2 कर देते हो. तो हमारे ना ये जो easiest है ना, वो balance हो गया. ये समझ आ रही बात? अमाद, ये clear है? हिबा, ये clear है? मरियम, फारिया? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि equations are going to get complicated, so remember to use this rule. ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद अब थोड़े से, अब कौन सा सबसे easiest? हाइड्रोजन है. बैलेंस हाइड्रोजन फर्स्ट, ऑक्सीजन को ना छेड़ो. तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? इसमें तो एक ही H है, लेकिन वो ब्रैकेट के बाद 2 है, तो इसका मतलब 2H है, एंड 3 मॉलिक्यूल है, तो 6H. तो there are 6 hydrogens over here, and similarly there are 6 hydrogens over here as well. ठीक है? 3 है, लेकिन वो 2 दफे है, तो 6 hydrogens. So that means over here that's a total of 12 hydrogens in the reactants. 12. तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 हो जाए? I'm going to multiply it by 6. ठीक है? तो we are done with, अच्छा, so we are done with the hydrogen. आखिरी वाला जो सबसे मुश्किल था, oxygen is in 4 places. वो खुद ही बैलेंस हो जाएगा. उसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है. वो चेक भी कर लो. चेक जरूर कर लेना कि वो हुआ भी है कि नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो उसका मतलब है आपने कुछ गलत किया है. So if you go and have a look,
तो ऑक्सीजन वुड बी बैलेंस्ड. काउंट करो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, मतलब OH ट्वाइस है, तो दैट मींस 2 ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो दैट मींस 6 ऑक्सीजन. तो देयर आर 6 ऑक्सीजन ओवर हियर. यहाँ पे कितने हैं, PO4 में तो 4 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मींस 8. तो रिएक्टेंट्स में कितने ऑक्सीजन हो गए आपके पास, 14 हो गए. 8 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है. तो इधर काउंट कर लेते हैं. PO4 ट्वाइस है, तो इसका मतलब है दैट्स 8 ऑक्सीजन. और यहाँ पे वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन होते हैं, 1, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो दैट्स 6 ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो गए. उस साइड पे भी 14 है, उस साइड पे भी 14 है. तो द लास्ट वन जो सबसे डिफिकल्ट था ना, दैट यूजुअली एंड्स अप बैलेंसिंग इटसेल्फ. यू डोंट रियली हैव टू डू मच व्हेन यू आर ट्राइंग टू बैलेंस दैट. ठीक है, तो ये इस रूल को ना फॉलो करना, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, कि स्टार्ट विद द इजीएस्ट, जो लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस, पहले उनको बैलेंस कर लो, उसके बाद फिर जो 3 जगहों पे आ रहे हैं एलिमेंट्स उसको बैलेंस करो, फिर जो 4 जगहों पे आ रहे हैं. डू यू गेट द आइडिया? खदीजा, डू यू गेट द आइडिया? अमाद, क्लियर है? जी सर. अच्छा, सो लेट्स ट्राई एंड डू अनदर इक्वेशन. ठीक है, एल्यूमिनियम, we're going to try and do aluminium plus nitric acid. नहीं, एल्यूमिनियम बेस करना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं. अच्छा, प्लस नाइट्रिक एसिड. तो दिस इज बेस, एल्यूमिनियम +3 था, OH -1 था, so it's AlOH3. It's going to produce salt and a water molecule, so water plus salt. Salt क्या होगी? Salt would be कि एल्यूमिनियम आएगा और H की जगह आ जाएगा. ठीक है, तो the salt is going to be aluminium and NO3. उसका बस फॉर्मूला बना दो कि एल्यूमिनियम is +3, NO3 is -1, so it's going to be aluminium nitrate thrice. ठीक है, that's the salt that would be produced in this reaction. तो इसको हटा देते हैं, चार्जेस हटा देते हैं. नाउ वी नीड टू बैलेंस. तो कोई मुझे जल्दी से बता दे कि किसको पहले बैलेंस करेंगे? एनीवन? Al को? एल्यूमिनियम को. ठीक है, क्योंकि वो सबसे आसान है, लेकिन वो पहले ही बैलेंस हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दैट्स इट, डन. उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन इज इन 2 प्लेसेस. कितने नाइट्रोजन यहाँ पे? इस ब्रैकेट के अंदर तो एक ही था, मतलब उसके साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ, लेकिन वो ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3 नाइट्रोजन, सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, तो नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड. अब इसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे या H को करेंगे? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. हाँ, हाइड्रोजन कम जगहों पे है. ठीक है, ऑक्सीजन इज इन 1 2 3 4 प्लेसेस, उसको n के लिए छोड़ दो. ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. लेकिन यहाँ पे अब वो मसला आ गया, ये बीच में अक्सर मसला आता है कि एक जगह 2 हाइड्रोजन है, एक जगह 3 हाइड्रोजन है. जब भी ये इशू हो तो आप उन दोनों को 6 कर दो. ठीक है, तो मैं दोनों को, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. नाउ माय हाइड्रोजन इज बैलेंस. लेकिन वो करने से ना वो जो प्रीवियस बैलेंसिंग हुई थी ना, वो सारी गलत हो गई है. तो नाइट्रोजन अब कितने यहाँ पे? 6 है, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ 3 थे. एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो इधर भी एल्यूमिनियम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, खैर, सो वी हैव बैलेंस्ड एल्यूमिनियम, वी हैव बैलेंस्ड हाइड्रोजन, वी हैव बैलेंस्ड नाइट्रोजन एज वेल. तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस होगा, चेक कर लो. अगर नहीं हुआ तो उसका मतलब गलत किया है कुछ. ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? OH ब्रैकेट साइज है 3, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, सो दैट्स 6 ऑक्सीजन. इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 6 into 3 कितने हो गए? 18. सो दिस इज अ टोटल ऑफ कितने? 24 ऑक्सीजन. तो मतलब लेफ्ट में काफी ज्यादा ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन. नाउ ओवर हियर आई हैव NO3 3 times है, यानी
3 कितने हो गए 9 ऑक्सीजन्स, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो दैट्स अ टोटल ऑफ 18 ऑक्सीजन्स। और फिर आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? अच्छा नहीं, मैंने एच गलत बैलेंस किया हुआ है, एच को सही कर दो। ये हमने गलती की हुई है कि यहाँ पे 6H नहीं है, एच यहाँ पे भी है। तो हाँ, मैं मेरे ख्याल से मैं अच्छा एच यहाँ पे भी है, तो हम ये वाले एच हमने इग्नोर किए थे। दैट्स 6H ओवर देयर एज वेल, 6H ओवर हियर। तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, सो दिस शुड बी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो खैर ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो आखिरी आखिरी ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करने की कोशिश नहीं की थी, ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो गया था। खैर इस इक्वेशन में हमने वो स्टार्ट में गलती कर दी है कि हम इसी एज को फोकस करके बैठे हुए थे, वो वाला एज इग्नोर किया हुआ था। बट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, लेकिन वो सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। तो वी कैन आइदर स्टार्ट अगेन या फिर इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 2:6 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाता है? इट्स 1:3:1:3। ठीक है, सो इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये हमने गलती की थी कि एच हमने बैलेंस नहीं किया था। अच्छा खैर, ये बैलेंसिंग का रूल क्लियर है एवरीवन? आवाज क्लियर है? Sir, बस जी आप सर क्लियर। हाँ जी, क्या और 3 लिखेंगे. We're not gonna put 2 and 6 anymore, right? Like हाँ, we're gonna मैं simplify. उसको वो असल में हमने ना वो बीच में हम इसी एज को बैलेंस किए जा रहे थे, मैंने एज देखा ही नहीं ना, तो मैं फिर से अगर वो स्टार्ट करूँ ना, जल्दी से कर लेते हैं दोबारा से। तो हमने वो बीच में ना गलती की थी, हमने एज देखा ही नहीं था। तो क्या करना है? एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ठीक है फाइन। आसान वाला कौन सा? नाइट्रोजन 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, ठीक है। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करोगे? एच को, ठीक है, जो थर्ड इजिएस्ट है। एच कितने यहाँ पे? 3 है, और 3H यहाँ पे भी है, तो दैट्स अ टोटल ऑफ 6H। तो इधर वाटर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। और ऑक्सीजन जो है ना लास्ट, वो खुद ही बैलेंस हो गया, उसको काउंट कर लो कि there are 3 ऑक्सीजन ओवर here, there are 9 ऑक्सीजन ओवर here, तो दैट्स अ टोटल ऑफ 3 + 9 कितना होता है? 12। NO3 थ्राइस है यहाँ पे, तो दैट मीन्स 9 ऑक्सीजन ओवर here प्लस 3 ऑक्सीजन ओवर here, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। वो वैसे याद कर लो कि अगर बैलेंसिंग करते हुए ना अगर नंबर्स ऐसे आ जाए जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो द इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। कि अगर 2 4 6 आ रहा है ना, तो उसको आप 1 3 2 4 6 का क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, सर क्वेश्चन ये मैं उसके ऊपर ना पोस्ट भी कर रहा हूँ क्लासरूम के ऊपर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है, बेस प्लस एसिड। तो लिखने किस किस के साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, phosphoric acid, and sulfuric acid. There are 4 equations that you have to make. Okay, you have to make 4 equations, and so ये 4 reactions लिखने, this is your homework. तो ये try करो। और इसको ना मैं क्लासरूम के ऊपर पोस्ट करके I'll send the link in the group as well. ठीक है, just make sure everyone submits this. बेशक गलत है, ठीक है, we don't care, उसकी corrections हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, लेकिन try करनी है। चलिए ठीक है, any other questions about this? बस एक काम करो, सारे जाके वहाँ प्रेजेंट लिख दो ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। और अगर आपका कंप्लीट नाम, अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर ना आपका कंप्लीट नाम नहीं है या कंप्लीटली कोई डिफरेंट नाम है, तो जस्ट मेक श्योर कि वो नाम भी साथ लिख देना। चलिए ठीक है, ओके देन, we'll continue with this tomorrow then. Take care, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.